This is additional learning page and I'm here with the next video that belongs to sentence. We have heard about sentence and today in this video I will know about the 4 different types of sentences. I have made a video on sentence and different types of sentences like simple sentence, complex sentence and compound sentence. All members can see it from the additional learning page. In this video I will explain the types of sentences one by one. Sentence is very clear to all of you. A group of words that makes a complete sense is called sentence. Like he is going to market, what is your name? Okay. When we use sentence, we see there are different kinds of sentences. Some sentences are the examples of statements. Some are questions. This is why sentence is categorized into 4 main groups. There are 4 main types of sentence. What are they? We can see. We will see in this video. वाक्य को चार तरह से बांटा गया है. ठीक है. पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, दूसरा इंट्रोगेटिव है, तीसरा इम्पेरेटिव है और चौथा एक्सक्लेमेटरी है. There are 4 main types of sentence. These 4 types are declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence. इस वीडियो में चारों तरह के वाक्य को हम जानेंगे और समझेंगे. सबसे पहला जो सेंटेंस है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ बताया जा रहा है. To express or communicate what we want to say, we sometimes use different kinds of sentences. Here we will talk about the 4 different types of sentences that are declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Each has its functions and patterns. बात करते समय किसी से भी हम बात करते हैं तो कई तरह के वाक्य का वहाँ प्रयोग किया जाता है. मुख्य रूप से हम 4 तरह के वाक्य का प्रयोग करते हैं और ये 4 प्रकार वाक्य का प्रकार होता है. ये 4 प्रकार है. डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है. अब वन बाय वन करके हम जानेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है और इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे. सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. We use them to convey facts and ideas. In other words, they are used to declare some things. These are by far the most used kind of sentence in writing and speaking. Think about your communication in daily life. Most of our communication is to give or take information. We speak to people about what we desire to know. We provide the answers to their questions. We share different ideas and opinions we have. This kind of communication is conveyed through declarative sentence. Declarative sentence वाक्य का सबसे पॉपुलर टाइप्स माना जाता है. सिंपल वे में जो भी हम सच्चाई या स्टेटमेंट जो भी हम शेयर करते हैं, जैसे ही इज ए गुड बॉय, आई एम टॉकिंग, द डॉग वेंट टू द पार्क, इस तरह का जो सामान्य वाक्य होता है जो फैक्ट कन्वे करता है, आइडिया कन्वे करता है, उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं.
इसे पहचानना बहुत ही आसान है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का अंत फुल स्टॉप से होता है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इस तरह से हम जानेंगे कि ये सिंपल स्टेटमेंट होता है, इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का यहाँ कुछ सिंपल सा उदाहरण दिया गया है। पहला है रोम्बो सॉ द डॉग प्लेइंग विथ अ बॉल। बहुत ही आसान है। रोम्बो एक कुत्ते को देखा जो बॉल से के साथ खेल रहा था। डॉग्स डू नॉट रन अवे। डॉग्स डू नॉट रन अवे, कुत्ता नहीं भागता है। द डॉग which run away are not properly trained। इस तरह का जो सिंपल सा वाक्य है हमारे सामने आ रहा है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप। वाक्य का जो दूसरा काइंड है उसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। We use this type of sentence to make a plea or to give a command. Imperative sentences usually end with a full stop, but under some circumstances they can end with a note of exclamation। एक ऐसा वाक्य जिसकी सहायता से ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, क्षमा मांगी जाए या अनुमति ली जाए, इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे गो देयर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह का जितना भी वाक्य होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का वाक्य कहा जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की सहायता से कोई भी रिक्वेस्ट शेयर किया जाता है। शेयर विश और रिक्वेस्ट। इनविटेशन दिया जाता है। शेयर अ कमांड और रिक्वेस्ट। ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। कुछ इंस्ट्रक्शन देना हो तो वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की सहायता से दे सकते हैं। इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नेवर हेट अ पर्सन हु टीचेज यू। थोड़ा सा इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि जो तुम्हें कुछ सिखाए उससे कभी नफरत नहीं करो। टेक अ राइट एंड गो स्ट्रेट। सजेशन दिया जा रहा है कि राइट लो और सीधे जाओ। डोंट बी सो स्केयर्ड ऑफ हिज एटीट्यूड। इस तरह का जितना भी सेंटेंस है ये देखिएगा, अफर्मेटिव से ये बिल्कुल डिफरेंट है। अफर्मेटिव में सारा सेंटेंस नॉर्मल था, कॉमन था, फैक्ट से रिलेटेड था। लेकिन जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें कहीं न कहीं सजेशन दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। सेंटेंस का जो तीसरा पार्ट है वो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस का तीसरा पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट एंड विथ एन इंक्वायरी एंड अ क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव सेंटेंस का अंत जो होता है वो फुल स्टॉप से होता है और कभी कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज होता है, ये ध्यान में रखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसकी सहायता से कोई प्रश्न पूछा जाए और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में एक क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। Yes, no question. The answer to this kind of question is yes or no. For example, do you want lunch? ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है सेंटेंस के थ्रू, do you want lunch, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण है। दूसरा, where do you play? तुम कहाँ खेलते हो? इस तरह का वैसा सेंटेंस जिसकी सहायता से क्वेश्चन पूछा जाए उसे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। आर यू कैथोलिक, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू वांट टू हैव फॉर डिनर, डू यू लाइक द कस्टर्ड एप्पल। ये जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब लास्ट जो है, चौथा पार्ट जो हमारा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानेंगे। When you make a statement that shows any emotion and ends with an exclamation mark, this is called an exclamatory sentence. These are often used within the English language and are useful to have in your vocabulary as a way of expressing yourself. Exclamative sentences are rarely used in academics writings except when they appear in quoted material which would likely be bare in the field. Please be cautious that the overuse of exclamation and exclamation point in essays, speeches, non-fiction or fiction makes it look amateur. Use exclamations only when necessary, such as in a direct quote or dialogue. बताया जा रहा है कि कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसकी सहायता से हम एक ऐसा स्टेटमेंट शो करते हैं जो स्टेटमेंट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, एक सडन फीलिंग हम शो करें या कोई ऐसा इमोशन जो सडन हो, वाओ, फुर्रे, ओह, इस तरह का जितना भी इमोशन हम सेंटेंस के द्वारा शेयर करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट माना जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज एकेडमिक में, राइटिंग में इसमें ज़्यादा नहीं होता है और ज़रूरत पड़ने पे ही हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करना चाहिए इन सब क्षेत्रों में। एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल लेते हैं। जेसस, ही स्केयर्ड द हेल आउट ऑफ मी। जेसस के बाद देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। यू वर सपोज टू बी हियर येस्टरडे, हुर्रे, वी वॉन द फुटबॉल मैच, इट्स अ गर्ल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज दिस, एक्सक्लेमेशन मार्क, यू आर सो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, व्हाट ए सरप्राइज। इस तरह का जो वाक्य होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उदाहरण होता है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। सेंटेंस को 4 भागों में बांटा गया है, 4 टाइप बताया गया है सेंटेंस का। पहला टाइप जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचानना बहुत ही आसान है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस फैक्ट बेस्ड होता है, आइडिया बेस्ड होता है। ठीक है, सिंपल जितना भी सेंटेंस है वो सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। जैसे द डॉग went to the park, Rombo saw the dog playing with the ball, dogs do not run away, the dogs which run away are not properly trained। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना और भी ज़्यादा आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सहायता से हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा हम पहचान लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं, हाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंस पे आते हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस था। इम्पेरेटिव सेंटेंस को भी पहचानना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम ऐसे पहचानेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस की सहायता से या तो रिक्वेस्ट किया जाएगा या ऑर्डर किसी को दिया जाएगा
इस तरह का जो सेंटेंस हमारे सामने आएगा तो उसे हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये सारा सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे नेवर हेट अ पर्सन हु टीचेज यू, टेक ए राइट एंड गो स्ट्रेट, इस तरह का कमांड रिक्वेस्ट वाला जितना सेंटेंस होगा वो सब इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अभी बताए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। आर यू कैथोलिक, वेयर डू यू लिव, etc। और लास्ट जो सेंटेंस का जो लास्ट पार्ट है वो एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की सहायता से कोई सडन फीलिंग शो किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। आज के वीडियो में इतना ही। होप ऑल स्टूडेंट्स विल वॉच दिस वीडियो एंड try to understand more. Thank you.